अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। First of all, it's my pleasure. I feel very honored and blessed, mashallah, to be standing here and addressing all my brothers who work as medical representatives, all the prestigious and elite people of the society, area managers, regional managers, some chemists, doctors also. Especially, I would like to thank Mr. Yaqub. He's like a younger brother to me, and he's always strived very hard, very hard for any program. Let it be the MR program or related to some party program, Eid Milad, etc., etc. He's the only one who takes every month Khatna camp also. MashaAllah, I would like to thank Rizwan Bhai, Yaqub, obviously, Sarfraz Bhai, Irfan Siyad Saab, Farooq Bhai Amar, who is like my elder brother. He's been since 2019 with me, since day one when I came to Solapur. Thank you, Farooq Bhai, thank you so much. मिस्टर मज़हर कुरैशी जो हमारे अध्यक्ष हैं माशाल्लाह, इरफान साहब, एजाज साहब, सिराज बीजापुरे, अली शेर पटेल, जावेद बेगमपुरे, इरफान अध्यक्ष, हमीद, and each and every one sitting in front of me. Is this English enough, Mr. Yaqub? When I came here, Yaqub said, English में बात करना पड़ेगा, impression अच्छा पड़ेगा. So that is why I gave my a few starting lines in English only. But still, थोड़ी और झाड़ लेता हूँ इंग्लिश. इसके बाद हिंदी चालू करेंगे. We'll make it in English, not English, not Hindi also. We'll mix Hindi with English and make it in English. Okay. So last time when I came in 2019 to contest this election, I still remember when I close my eyes, I can recollect those moments. In fact, I didn't remember the name of the hall where the function was concluded last time. So I asked Yaqub, "Oh, function kahan hua tha?" So he said, "Mannat Hall." So when we all met in Mannat Hall, to be very frank, I was completely blank. I didn't knew what MR actually means. So I didn't knew whom I'm going to address and what would I say. But I was so excited, so excited to talk in front of you. In fact, I was not stopping. मेरे पीछे जो लोग बैठे थे वो बोल रहे थे थोड़ा स्लो रुक जाओ बट एक एक्साइटमेंट एक जोश था मेरे अंदर. वो मैं आप लोग को बताना चाह रहा था लास्ट टाइम बट दिस टाइम एज you all are not new to me, I am not new to you all. ये 5 साल में बॉन्ड जो हमारा हुआ है माशाल्लाह, जो भी हो, यू आर माई ब्रदर्स और मैं आपका भाई हूँ माशाल्लाह. So this time I don't need to be so excited. I don't need to give some explanation or whatsoever. जो भी हमारे भाइयों ने बोले कि मैंने ये किया वो किया, मेरी ताकत नहीं है भाई. I am not capable of doing all those things whatever I did in the last 5 years. ये अल्लाह ने मेरे हाथों से काम किया मेरे साथ. मेरी कोई औकात कोई ज़ात नहीं है. हाँ, अल्लाह का बेशुमार एहसान है कि अल्लाह पाक ने मुझ जैसे नाचीज़ को चुना कुछ करने के लिए, और इसके बदले में फारूक शाब्दी को कुछ नहीं चाहिए. अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह पाक इसका अजर मेरे माँ बाप को दे, मेरी औलाद को दे, मेरी अवाम को. लास्ट टाइम हम मिले थे मन्नत हॉल में, आई स्टिल रिमेंबर, मैंने बोला था कि आप लोगों में ये सलाहियत है कि आप लोग हंसते हंसते प्रॉफिट बना के कड़वी दवाइयाँ बेच देते हो. दवा बेचना इज नॉट इजी ना. लास्ट टाइम भी बोला था मैं, आइसक्रीम टॉफ़ी वगैरह बेचना इज वेरी इजी, मिट्टी चीज़ है, दे दिए. लेकिन आप लोग कुछ तो है. दवा जो बेच सकता है वो कुछ भी बेच के आ सकता है.
Make me your product. Make Farooq Shabdi your product for 32 coming days. इतना बेचो कि स्टॉक कम पड़ जाए। तो बस मैं आप लोग से यही दरख्वास्त करूँगा कि आने वाले 32 दिन जो हैं वो हमारे लिए, जैसे हमारे सरफराज भाई ने भी तमाम मुद्दे बताए, वो हम लोगों के लिए बहुत अहम है। आने वाले 32 दिन जो वोटिंग का दिन है और 35वां दिन जो रिजल्ट का दिन है, हम सब मिलके ये दुआ करें कि इस बार अल्लाह पाक हम सबको जीताए। आई डोंट वांट टू विन, मैं नहीं जीतना चाहता। मैं खुशकिस्मत हूँ कि अल्लाह ने मुझे एक ज़रिया बनाया इस बार कि आई एम स्टैंडिंग हियर इन फ्रंट ऑफ यू एंड टॉकिंग। मैं आप लोग से वोट मांग रहा हूँ, बट यकीन मानिए ये जीत मेरी जीत नहीं है। अल्लाह ना करे ये हार मेरी हार नहीं होना चाहिए। ये हम सब की जीत है, हम सब की हार है। तो उस हिसाब से हमको बड़ी ही जिम्मेदारी से हमको ये 32 दिन काम करना पड़ेगा। आज हालात आप देख रहे हैं, याकूब बेचारे बयान करते करते उनकी आंख नम हो गई। ही सेड कि ये जो एमआर है ये पिछले 12 सालों से ये एमआईएम के साथ जुड़े हुए हैं और 12 साल में क्या क्या तकलीफ परेशानी आई है मैं जान चुका हूँ। लास्ट 5 साल में फिर भी डट के ये लोग खड़े रहे और आप लोग ने हिम्मत नहीं हारे। याकूब इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो आप लोग की कोशिश थी, आप लोग ने एक पौधा लगाए थे, वो दरख्त बन गया, वो दरख्त में फूल आए, फिर फल आए। इंशाल्लाह तुम्हारा भाई वो फल को दूसरों को खाने नहीं देगा, वो फल के हकदार आप लोग हैं। 12 साल मार्केट में टिके रहना इज लाइक, आज दवा गोली का नाम आया तो सेरेडीन, एनासिन, क्रोसिन हमारे वो छप गया है हमारे दिमागों में। कोई अनपढ़ आदमी को भी मालूम रहता ही है। तो आप लोग वैसे नाम बना चुके हो कि मुसलसल मार्केट में इतने साल टिके हुए हो। ये इलेक्शन में आने के बाद लास्ट मीटिंग में सर 5 साल पहले जब मीटिंग हुई थी तो आई सेड, मैंने बताया था कि मैं बहुत बड़े स्केल पे फार्मा केमिकल्स का इंपोर्ट करता था। मैं अल्बेडाजोन का बहुत बड़ा इंपोर्टर था बोल रहा हूँ मैं। ये 5 साल में यहाँ आने के बाद अनलकीली मेरे को काफ़ी सारे मेरे बिजनेसेस बंद करना पड़ा, बिकॉज मैं वो बिजनेस को जस्टिस नहीं दे पा रहा था, टाइम नहीं दे पा रहा था। और उसके अलावा दूसरी वजह है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी चेंज हो गई। जब से जीएसटी एंड ऑल इतने लागू हो गए तो इम्पोर्टिंग एंड सप्लाइंग बहुत मुश्किल हो गया है। तो फिर भी आप लोग एज एन एमआर, आज जो आप लोग की सिचुएशन है, मैं फारूक सर से बात करता हूँ कभी कभार तो वो बताते हैं कि ऐसा वो जता रहे नहीं थे, लेकिन उनकी बातों से मुझे पता चला कि बाइक पे ये वो 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर कहाँ जाते हैं अपने प्रोडक्ट को मार्केटिंग करने के लिए। तो ये जो हार्डशिप्स है आप लोग की लाइफ में, माशाल्लाह इससे घबराना नहीं है, लेकिन ये 24 कैरेट रिस्क के हलाल आप लोग कमा रहे हो माशाल्लाह। इसके अंदर जो भी मिलेगा आप लोग को शायद कम मिले, लेकिन बरकत वाला रहेगा, ये मैं यकीन के साथ बोल सकता हूँ। और ये पैसा अगर आप लोग के बच्चों के पेट में जाएगा तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके बच्चे आपसे ज़्यादा कामयाब होंगे। इतने धूप में बारिश में आप लोग बाइक्स पे, बसों में, किसी की बस गाड़ी होंगी शायद अपने प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग करने के लिए इतने दूर जाते हैं। उसके अलावा होता क्या है, आप लोग को एक टारगेट दिया जाता है। इफ़ यू डोंट अचीव द गिवन टारगेट तो शायद आपके जो पर्क्स होती है, जो आपको बोनस वगैरह कुछ डिक्लेयर कंपनी करती है, वो भी नहीं मिलता होगा मेरे ख्याल से।
तो तकलीफ़ें हर फील्ड में हैं, लेकिन आप लोग की फील्ड में मैं समझता हूँ कि ज़्यादा है, बिकॉज पेरोल भी मेरे हिसाब से थोड़ा कम ही है, जो होना चाहिए वो कम है. बीइंग एन कैंडिडेट, एम कैंडिडेट, आई कैनॉट कमिट कि मैं ये कर दूंगा, ये करवा दूंगा. लेकिन आपका भाई होने के नाते अगर मैं जीत गया तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का मुद्दा, जो शायद आज तक असेंबली में नहीं सुना गया होगा किसी आमदार के मुंह से, लोगों को जगाने के लिए, एटलीस्ट जगाना है पहले, बाद में उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, वो आपका भाई जरूर उठाएगा, जरूर उठाएगा. बट फॉर दैट यू हैव टू गिव मी अ चांस. मैं बस इकबाल मैदान की बात किए, लॉकडाउन की बात किए, ये मैं बोलूँगा ट्रेलर भी नहीं है, ये टीज़र है, टीज़र. मैं जीत जाने के बाद पिक्चर दिखाऊंगा और पिक्चर सुपर डुपर हिट. और मेरी एक आदत है, मेरा एक नेचर है, मैं आई डोंट बिलीव इन ये जात पात एंड ऑल. मैं ह्यूमैनिटी में विश्वास करता हूँ भाई, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, डोंट माइंड. मैं इंसान को ज़रूरत पे नापता हूँ. अगर उसकी वाकई में ज़रूरत है, वो चाहे किसी भी समाज से बिलोंग करता हो या मेरा वोटर हो, मेरे को वोट देता हो नहीं देता हो, मैं उसके ऊपर उसको कभी गेज नहीं करता. इनफैक्ट आज ही कुछ लोग आए थे मेरे से मिलने, नॉन मुस्लिम लोग. मैं उससे इतना इम्प्रेस हो गया, मैं जाने के टाइम उनको ये बोला, वो बोले मी उद्या सांगतो तुम्हाला की मी विचारून सांगतो की काम करायचं की नाही. मला कधीतरी सांगा, काहीतरी सांगा. आज से तुम मेरे दोस्त हो गए, तुम मेरा काम करो या मत करो. तो आदमी दोस्ती करने के लायक. तो मैं कार्यकर्ता नहीं ढूंढ रहा हूँ, मैं मेरे दोस्त, मैं मेरे भाई ढूंढ रहा हूँ. मैं अगर कुछ करता हूँ, अल्लाह पाक जो भी काम लेता है नेकी का, तो मैं ये सोचता हूँ कि इसका अजर देने वाला अल्लाह है. मैं इंसान से अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बात का यकीन करो, मैं कोई उसका अजर की उम्मीद रखता नहीं हूँ, क्योंकि वो गफूर रहीम है, उसके ख़जाने में क्या कमी है. तो मैं उससे मांगता हूँ और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे उसमें चुना है. तो आने वाले 32 दिन, 32 डेज, आप लोग जान लगा कर जिस तरीके से दवाई बेचते हैं, आई वुड लाइक टू से मेरे केमिस्ट ब्रदर्स से भी कि आप लोग की दुकान पर भी जो लोग आते हैं और जितने भी एरिया मैनेजर्स हैं, रीजनल मैनेजर्स हैं, उनके हाथ के नीचे जो स्टाफ है, अनलकीली हो सकता है हमारे पास यहाँ सारे लोग मौजूद ना हो, सब लोग यहाँ पर नहीं है. तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये 32 दिन फारूक शाब्दी की ज़बान बने, फारूक शाब्दी के लिए प्रचार करें. प्रचार इन द सेंस में हुर्रे हुर्रे प्रचार नहीं, एक परसेप्शन क्रिएट करें. क्योंकि मैं हमेशा जो भी बड़ी फील्ड के लोगों के पास जाता हूँ, जिम्मेदार लोगों के पास जाता हूँ, तो मैं इनको यही बोलता हूँ कि एज अ उम्मीदवार अगर मैं किसी को कुछ बोलूँगा तो वो बोलेंगे अरे तुम तो उम्मीदवार है, वोट लेने के लिए कुछ भी बोलेंगे. एज अ कार्यकर्ता याकूब अगर किसी के पास जाके बोलेंगे तो बोलेंगे तू तो एमआईएम से 12 साल से जुड़ा हुआ है, तू तो अपनी पार्टी की बात करेगा. लेकिन अगर आप लोग के ज़बानों से ये बात निकलेगी कि दिस टाइम वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड एंड दिस टाइम बाय हुक और बाय क्रुक पतंग उड़ने वाली है. तो अगर आप लोग ये बातें समाज में फैलाएंगे तो लोग सोचने पे मजबूर हो जाए. तो दिस इज़ लाइक ब्रेन वॉशिंग. अगर कोई दवा है आप लोग के पास, या तो स्पेशल कोई कंपनी को बोल के दवा भी बन सकती है तो मैं खरीदने तैयार हूँ. जो एक गोली दिए तो अपना वोटर हो जाए, ऐसी दवा मिले तो ले लो. लेकिन आप लोग खुद एक दवा है, आप लोग इंशाल्लाह चाहेंगे तो वो वेरी मच पॉसिबल है. तो हम सबको ये आने वाले जो 32 दिन है उसमें हम सबको एक अहद लेना है
कि हम रोज 10 लोग से मिलेंगे जो मजलिस से दूर है, जो फारूक शाब्दी को नहीं चाहते, जो पार्टी को नहीं चाहते। तो जो जैसा है उसको वैसा टेकल करिए। जिसको पार्टी पसंद नहीं उसको फारूक शाब्दी बताइए, जिसको फारूक शाब्दी पसंद नहीं उसको पार्टी बताइए, जिसको दोनों पसंद नहीं उसको देश के हालात बताइए और जरूरत बताइए कि व्हाई वी हैव टू टेक दिस स्टेप नाउ। आगे का उसको बताइए। जैसे सरफराज भाई बोले, इट इज वेरी मच पॉसिबल कि इन कमिंग ईयर्स ये जगह आइदर रिजर्व्ड हो जाएगी या डिलिमिटेशन में चली जाएगी। डिलिमिटेशन मीन्स वापस प्रभाग रचना हो सकती है, एंड गॉड नोज कि प्रभाग रचना कहां से कहां काटेंगे। अगर हमको उत्तर के साथ मिला दिए तो शायद यहाँ जितने काले बाल वाले बैठे उनके भी बाल सफेद हो जाएंगे और हम लोग यही सोचते रहेंगे कि हमारा मुस्लिम आमदार होना चाहिए। तो दिस इज द टाइम, दिस इज द अपॉर्चुनिटी। ये अपॉर्चुनिटी को हमको दोनों हाथों से ग्रैब करना जरूरी है। तो मैं आप लोग से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि रोज 10 लोग से मिलिए, उनका ब्रेन वॉश कीजिए, उनको समझाइए। तो अगर यहाँ 200 लोग हैं तो 10 इंटू 200 इज 2000 मेरे ख्याल से, है ना। 2000 लोग रोज आपके बातों से मुतासिर होकर अगर हमारे साथ जुड़े तो वी स्टिल हैव 30 डेज। तो 2000 इंटू 30 60,000, ऑलमोस्ट पूरा मतदार संघ हम लोग कवर कर सकते हैं। तो दिस इज द इजीएस्ट वे। और रोज के 10 लोग को बीइंग मार्केटिंग एक्सपर्ट्स, मैं नहीं समझता कि आप लोग के लिए मुश्किल होगा। आप लोग को बात करने का भी ज़्यादा टैलेंट रहता है, काम ही वैसा है कि बात करना पड़ता है। थोड़ा सा इस पे भी काम कीजिए। और हम लोग यहाँ जहाँ जितने लोग बैठे, हम लोग 50 वोट की जिम्मेदारी लें कि इलेक्शन के दिन, वोटिंग के दिन हम हमारे रिलेटिव्स, हमारी फैमिली, हमारे दोस्त, हमारा सर्कल एक लिस्ट बनाए। मुंह जबानी कुछ नहीं करना है। जब कोई भी चीज़ डॉक्यूमेंटेड होती है तो उसका जो ब्लैक एंड व्हाइट पे आती है तो उसका अमल होता है। हम सोचते हैं, बात करते हैं और दूसरे दिन भूल जाते हैं, लेकिन अगर चिट्ठी बनेगी तो हम रोज वो देखकर उस पर काम कर सकते हैं। तो वोटिंग के दिन हमको 50 लोगों की जिम्मेदारी लेना है कि मैं एज एन इंडिविजुअल कम से कम 50 लोग का वोट कराऊंगा। वो जहां भी हो एटलीस्ट भाई उनको कॉल करेंगे, उनको लेकर जाएंगे। और दूसरी चीज, काफी सारे लोग बोले हमको जिम्मेदारी दो, जिम्मेदारी दो, जिम्मेदारी दो। अरे 3,39,000 वोटर है, मैं इंडिविजुअली सबको मिलकर जिम्मेदारी नहीं दे सकता। तो ये वक्त ऐसा है कि हमको अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए और बगैर जिम्मेदारी मिले या बगैर जिम्मेदारी मेरी तरफ से दिए आपको जिम्मेदारी लेना है। और वो जिम्मेदारी ये हो सकती है जो मैंने बोला, 10 लोग से मिलना, 50 लोगों को वोट कराना। वोटिंग के दिन हम ये जिम्मेदारी लेते हैं कि बूथ पे अगर कुछ नहीं दिख रहा है, कोई हमारा आदमी नहीं है, तो हम बूथ एजेंट बन जाएंगे। बाहर टेबल पे अगर कोई नहीं है तो हम टेबल पे पहुंच जाएंगे। स्लिप्स अगर नहीं पहुंची है कहीं पर भी तो हम स्लिप्स लेकर पहुंच जाएंगे। इंशाल्लाह हम स्लिप मुहैया कराएंगे। मैं टेबल्स पे लैपटॉप, प्रिंटर सब लगाऊंगा, वहां से ही स्लिप करेंगे। एक ऐप है हमारा, वो ऐप अभी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा आफ्टर दिस स्पीच। तो वो ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। वो ऐप में आप अपना नाम पहले सर्च करिए, फैमिली का नाम सर्च करिए, अपने दोस्त है आपका, और वो ऐप से डायरेक्ट आप उनको उनकी स्लिप, वोटिंग स्लिप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो वो आप लोग अपने पास रखिए। लास्ट एंड टाइम क्या होता है, भागम भागी हो जाती है। हमारी माँ बहनें जाते हैं एक पोलिंग बूथ पे, वहां बोलता है तुम्हारा यहाँ नहीं है, तुम्हारा वहां है, फिर वहां से दूसरा भेजते। तो ऐसा बेजार होके लोग वापस अपने घर पे चले। ईच एंड एवरी वोट काउंट्स। हर वोट मायने रखता है भाई। ये ऐसी बीमारी है जो जिसका एक वो रहता है कि डॉक्टर वो देता है ना, क्या बोले, 3 दिन का कोर्स। वो कोर्स अगर एक बार का भी मिस हो जाए तो बीमारी वापस आ जाती है। तो वैसे ही ये एक वोट भी हमारे लिए वैसा ही कीमती है। अगर हम अपने अपने वोट को अगर जरूरी नहीं समझेंगे, सोचेंगे मेरे वोट से क्या होगा यार, तो ये जो बीमारी है ना आज, ये अनलकीली मेरे को बोलना पड़ रहा है कि वापस आ जाएगी। तो ये कोर्स पूरा करते भाई लोग इस बार।
आप लोग दवाई से रिलेटेड है तो दवा का एक एग्जाम्पल दे के मैं सारी बातें कर रहा हूँ। तो बस आप लोग यही कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा। और एक चीज़ आप समझ लीजिए, अभी इलेक्शन आ रहा है, कैंडिडेट्स डिक्लेयर होने वाले हैं। अब जब कैंडिडेट्स डिक्लेयर होंगे तो काफ़ी सारी पार्टी के लोग अलग अलग अपना मैनिफेस्टो लेकर आएंगे, अलग अलग अपना जो भी है तरीके से, जैसे सर ने बताया कुछ डराने धमकाने वाले भी है। इस बार उन लोग की नहीं चलने देंगे इंशाअल्लाह। इस बार समाज ने ठान लिया है, जहाँ तक ग्राउंड रिपोर्ट में देख रहा हूँ, और आपके भाई ने दूसरे नॉन मुस्लिम समाज भी जो है वहाँ पर भी अच्छा हमारा पकड़ है, मेरी पहचान, दोस्ती, यारी, संबंध है, वहाँ से भी हमें वोट मिलेंगे। तो दिस टाइम ये सोलापुर की हिस्ट्री में सर थोड़ा स्टैट्स बता दूं मैं आपको कि हाउ इट इज़ पॉसिबल। लोग आएंगे, अरे एक समाज के वोट से नहीं जीतता आज वोट, तो मैं एक समाज का ही कैलकुलेशन आप लोग को बताता हूँ, एक ही समाज का, टू बी वेरी क्लियर, मुस्लिम समाज का। In the history of Solapur, we have crossed official polling numbers in the voting list is 1,05,637. We are very close to 32% of the overall population in the constituency. तब मेरे को ये बताओ, 1,05,000 रहकर अगर हम लोग सीट नहीं निकाल सके तो ये मैं समझता हूँ ऐसा मौका फिर अल्लाह पाक है, अल्लाह कुछ भी कर सकता है, अल्लाह कैसे भी असबाब बना सकता है, लेकिन आगे और ऐसे हालात शायद ना आए अगर ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो इस बार इन लोगों को ये बोलना है कि भाई आप अपने कैलकुलेटर जेब में रखो। हम लोग सोच चुके हैं कि हम लोग एकजुट होकर, मुत्तहिद होकर, जैसे प्रणीति शिंदे के टाइम काम किए, करे क्या नहीं करे? सरफराज भाई कहाँ गए? करे क्या नहीं करे? कैसा करे सब? नहीं, मैं भी किया ना, मैं भी हर बूथ पे गया। तो उसी तरीके से मैं तो तुम्हारा हूँ यार, ये वो तो ताई थी, ये तो भाई है ना। मेरे को इतना बोलने मत लगाओ फिर। हाँ, मेरा हक है, हक से मांग रहा हूं मैं। तो इंशाल्लाह 1,00,000 वोटिंग है हमारी। अफसोस की बात यह है कि आज हमारे इलाकों में कुछ लोग ऐसे गाफिल हो गए कि जो हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, और जो लोग जाकर उसको शय देते हैं, तुझे केसाला पण धक्का लाऊ देनार नहीं बोलने वालों को इस इलाके में ला रहे हैं, तो मेरे को बताओ कि आप लोग उनके साथ खड़े रहेंगे क्या? तो वैसे लोगों को भी सबक सिखाएंगे। हमारी जान और माल कुर्बान है, औलाद भी कुर्बान है, सब कुर्बान है, सब कुर्बान है। तो ये चीजें समझने की बात है कि कौन किधर क्यों जा रहा है। आखिर में बस भूख लगी होंगी आप लोग को, मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। बोलने को तो अरे केमिस्ट छोड़ को आए, हमारे गिराका रहे होंगे बेचारे सब। कौन? हाँ, वो भी बोलता हूँ। तो सर एक 5 मिनट सर प्लीज, हाँ 5 मिनट। तो बोलने के लिए बहुत कुछ है, इलेक्शन में बाकी तो रखो यार, हाँ बाद में आके बोलूंगा, लेकिन ठीक है। बहरहाल जोक्स अपार्ट, हमको वेरी सीरियसली और बड़ी जिम्मेदारी के साथ दिस टाइम हम ये काम को अपना ज़रूरी काम, अल्लाह माफ़ करे, हम इसको फ़र्ज़ मान लेते हैं भाई कि हमारा वोट डालना, हमारे परिवार का वोट डालना, हमारी जान पहचान का वोट डालना इस बार हमको फ़र्ज़ है, और वो डाले बिना हम दोपहर का खाना भी नहीं खाएंगे ये। और खाना खाने कौन जाने वाले दोपहर को? उस दिन शाम को 6 बजे तक सब भूखे रहेंगे इंशाल्लाह। मैं भी रोज़ा रखूंगा, आप सब लोग भी रोज़ा रखना इंशाल्लाह। तो उस दिन हमको जिद्दोजहद करना है। गिव मी 1 डे, गिव मी 20th November,
मैं 5 साल नहीं दूंगा, मैं मेरी जिंदगी दे दूंगा इंशाल्लाह। एक कर्जा समझ के दो, वोट नहीं। देखो तुम्हारा भाई फेरता है क्या नहीं फेरता। इंशाल्लाह बोलने का क्या, करके दिखाएंगे, छोड़ो। मैं सब करूंगा इन द एंड। बस एक चीज ये समझ लो कि तुम्हारा भाई बहुत अकेला है। आज एक फारूक शाब्दी को हराने के लिए जो लोग एक दूसरे का मुंह देखना पसंद नहीं करते थे, मुंह देखना पसंद नहीं करते थे, आज पत्रकार परिषद ले रहे हैं, आज बाजू बाजू में बैठे। ये तुम्हारी ताकत है और ये फारूक शाब्दी है आप लोग। नहीं, सब नहीं, हर किसी को अधिकार है अपनी अपनी दुकान बचाने का। बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम समझदार हैं। अल्लाह ने हमको अक्ल सलीम दिया है। हम उस जो हमारी अक्ल है उसका इस्तेमाल करते हुए उसका इस्तेमाल करो और चुनो और एक एग्जाम्पल सेट करो कि सच की जीत होंगी और झूठे की हार होंगी इंशाअल्लाह। आखिर में बस 28 तारीख को 28 ऑफ अक्टूबर मंडे का दिन है। आपका भाई नॉमिनेशन भरने जा रहा है। मैं फॉर्म भरने जा रहा हूँ 28 नवंबर सुबह 10 बजे जिंदा शाह मदार चौक, यहाँ से अपनी रैली निकलेगी। और ज़ोर से ताली बजाना भी। और नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए महाराष्ट्र के शेर इम्तियाज जलील साहब, तो नॉमिनेशन की रैली, बस वही बोलने जा रहा था मैं, एक हिस्टोरिक इवेंट उसको बनाने के लिए आप सब लोग बड़ी तादाद में अपने अपने दोस्त अहबाब ग्रुप के साथ वहाँ पर शामिल होने की कोशिश करें। और इस नॉमिनेशन की रैली सोलापुर को नेशनल न्यूज़ पे लाया हुआ एक बार है, नामू से रिसालत में, और एक बार करते हैं। नॉमिनेशन भरने की रैली भी नेशनल न्यूज़ पे आना चाहिए। तो अपने थोपड़े दिखेंगे ना टीवी पे, अरे मैं वहाँ ठहरा हूँ, मैं वहाँ ठहरा हूँ, ऐसा दिख। तो बस मैं आखिर में यही बोलना चाहूँगा कि मेरी उम्मीदें बहुत है आप लोग से, बहुत उम्मीद है। माशाल्लाह हमने बहुत अच्छे से इलेक्शन लड़े गए बार, आप लोग ने बहुत जद्दोजहद की है। बट दिस टाइम, इस बार वो कोशिश जो भी हम करने वाले हैं उसको कामयाबी में तब्दील करने के लिए कोई भी कसर हम लोग नहीं छोड़ेंगे। आप लोग यहाँ आए, अपना कीमती वक्त दिए, और जो भी जितने भी इज़्ज़तदार मोअज़्ज़िज़ हस्तियाँ यहाँ पर बैठे हैं, मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आखिर में ये बोलता हूँ कि मेहनत तो हम सब करेंगे ही, ये 32 दिन दुआ भी खूब करना। अपने अपने घर में अपनी अम्मी को, अपने वालिद साहब को, बहनों को, अपने आपके वाइफ को बोलना कि अपने बच्चे के लिए, अपने भाई के लिए दुआ करें। दुआओं की भी ताकत बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।